हेलो, यस मैम। ठीक है गायत्री मैम, ट्राई करते हैं, 1 मिनट ट्राई करते हैं। अभी हम लाइव है फेसबुक पे इस समय, वहाँ स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। हाँ जी, ओके ओके। गुड इवनिंग एवरीवन। Good evening, everyone. Good evening, ma'am. 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 I would like to request the parents. Parents come forward. Parents come forward. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. प्लीज Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. प्लीज कीप योर माइक्स म्यूटेड। गुड इवनिंग टू एवरीवन। प्लीज डोंट we don't want you to repeat the instructions, and no one will present the screen. Please don't present the screen. पेरेंट्स आर रिक्वेस्टेड नॉट टू प्रेजेंट द स्क्रीन। प्रेजेंट स्क्रीन बटन आपको नहीं प्रेस करना है, और अपने माइक को बंद रखना है, एंड कैमरा को भी बंद रखिए अभी, ताकि हमारी जो वेबिनार है वो बिना किसी डिस्टर्बेंस के स्टार्ट हो जाए। थैंक यू। Good evening. I feel honored to welcome our supervisory head, Mrs. Sonu Sahni ma'am, our respected mentors, Dr. Gitanjali Kumar and Miss Nehal Dhingra, and the most valuable members of our family, that is parents, for taking a keen part in today's webinar, that is parenting during pandemic. I'm sure that you all will feel enriched with the knowledge after the completion
of this webinar. Before starting, I would like to brief about parenting. Someone has rightly said, the sign of great parenting is not the child's behavior. The sign of true great parenting is the parent's behavior. What is parenting? What is this parenting about? I think parenting is a lifelong journey. As a parents, we have an important responsibility. Agree, my all parents? It's a great responsibility, isn't it? Yes. So every parent wants to be a good parent and role model for our children. But effective parenting is not easy, right? And parenting during pandemic. The pandemic has turned our world as also of our children, with the young ones staying at home. The guiding norms of parenting need to be recalibrated. During pandemic is not something any of us prepared for, right? As the COVID-19 crisis continues, our kids may be absorbing some of the stress and the worry. So, as a parent, we need to be constructive while interacting with our kids to ensure that they remain healthy throughout this outbreak. Understand that the COVID-19 pandemic has interrupted our daily routine and that of our children, while this may be a hard time for them also. There are specific things that we as a parent can do to quell their fears and ensure healthy parenting. The health and safety of our children should be priority during the COVID-19 pandemic. Is it impossible? No, it's not impossible. To help you out, we have incorporated the session, the webinar today, that is parenting during pandemic, with you all during the COVID-19 by our esteemed mentors, respected and esteemed mentors, Dr. Gitanjali Kumar and Ms. Nehal Dhingra. But before starting, I would like to invite Mrs. Sonu Sani ma'am, Supervisory Head of Pre-Primary Department in AGDAV School, to welcome our esteemed mentors. Good evening. Thank you, Pooja. Good evening, friends. Myself, Sonu Sani, working with AGDAV School as a Supervisory Head of Nursery Department. I would like to welcome our eminent speakers, Dr. Gitanjali Kumar and Ms. Nehal Dhingra. I would like to brief about Dr. Gitanjali Kumar. She is a life skill trainer, parenting coach, motivational speaker, family therapist, working for the past 22 years in the field of psychology and counseling. She is a passionate person who believes in promoting well-being of individuals. She is a keen learner, involved in sharing and learning wholeheartedly with people all around her. She works hard to preserve the livelihoods in the lives of people. She is also on the panel of CBSE and member of Delhi Censor Board. She conducted around 3,500 training programs all around country and abroad for principals, teachers and students. She is a member and resource person of various renowned institutions such as NCPCR, MHRD, SCRT, Punjab, NIFT Delhi and many more. She is a frequent face on national channels and daily newspapers. She has also published many manuals and books. She is a specialist
in one-on-one counseling sessions. I welcome you, ma'am. Now, I am honored to brief about Ms. Nehal Dhingra. She is working with DAV Kailash Hills as a counselor and life skill coach for over 8 years. She is excellent in the field of education and optimize the use of qualification, abilities, acquired skills, and education with an aim to provide therapy and guidance to students. She is a psychologist, special educator, and educational therapist. I would like to introduce topic for discussion today is परवरिश. परवरिश कोरोना में मुश्किल है पर मुमकिन है. Ms. Nehal will take over the mic and guiding us regarding key values is positive in our kids because their values will definitely become their destiny. Over to Nehal ma'am. Thank Sonu ma'am, Pooja ma'am for such kind words. It is an absolute honor to be a part of this webinar, especially where I get a chance to Geetanjali ma'am, who's been more of a mentor. So thank you. It's an absolute privilege and a moment's pride for me. I'll just start my screen share and without wasting much time, I'll just start immediately. I hope the screen is visible now. Yes, Nehal ma'am. Thank you. So, yes, good evening, parents. Thank you for having me. The topic is very simple. जैसा कि अभी पूजा मैम और सोनू मैम ने कहा कि कोविड टाइम्स है, अचानक से एक रात पेरेंट्स को शिफ्ट कर दिया गया, बच्चों को शिफ्ट कर दिया गया ऑनलाइन टीचिंग में, and suddenly the schools were confined to your mobile screens and laptop screens. And we there was a sense of abandonment in the children कि अभी जिन बच्चों ने स्कूल ज्वाइन ही किया था, स्कूल की शक्ल देखी भी नहीं थी, एंड सडनली स्कूल एक मोबाइल पर आ जाता है, लैपटॉप स्क्रीन पर आ जाता है. The good and the bad. So there was also ample time with parents के लिए बहुत समय था और लॉकडाउन था. तो क्या इस समय को हम ऐसे पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं? क्या हम उस समय को इस तरह से यूज कर सकते हैं कि हमारे बच्चे ना तो सिर्फ किताबों के बारे में, पढ़ाई के बारे में सीखें, पर उसके बियॉन्ड एक स्टेप जाकर मॉरल्स और वैल्यूज, जिसके लिए अक्सर हमें समय भी नहीं मिला करता था और हम सोचते थे कि शायद मैजिकली हमारे बच्चे वैल्यूज एंड मॉरल्स सीख लेंगे. तो क्या वो समय हमें मिला है उसमें हम ये सब कर सकते हैं? That is my topic for the evening, ladies and gentlemen, and I would like to specifically highlight your role as parents in inculcating morals and values in children. Specifically because there is a shift in the teaching methodology, because there is a paradigm shift in the way education is being imparted in today's times. So I came up with a quote which says to educate a person in mind and not morals is to educate a menace to the society. सिंपल सी बात है कि हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे मोरालिटी सीखें, वैल्यूज सीखें. आपसे भी मैं पूछूंगी ना, आप क्या चाहते हो कि आपका बच्चा बड़े होकर क्या बने? तो पहला आंसर जो मैं अक्सर सुनती हूँ वो होता है कि मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा बड़े होकर अच्छा इंसान बने. Education, degrees and all these take a backseat. The first thing that we often hear about and we often wish for our child to become is a good person. अब ये अच्छा इंसान बनाने के लिए स्कूल्स तो बहुत मेहनत करते हैं. स्कूल्स मॉरल डेवलपमेंट करिकुलम भी ऐड करते हैं, लेकिन schools often intervene very late in life and that too in isolation. लेकिन parents
यस, आप लोग, आप पेरेंट्स ही उन बच्चों के फर्स्ट मॉरल एंकर्स होते हो। तो आप उन बच्चों को टीच करते हो वैल्यूज, मोरालिटी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, यू नो, एंड दैट टू एवरी मिनट, एवरी आवर ऑफ द डेली लाइफ। हर रोज बच्चे को आप कुछ सिखाते हैं, एक नई वैल्यू, एक नया मॉरल आप एक बच्चे को सिखाते हैं। So, you know, before the school or the teachers or the friends take, a role in teaching morals to the children, it is you who teaches the child from the very beginning, right? So, it is very important to understand कि हम पेरेंट्स का क्या रोल है इस मॉरल वैल्यूज को इम्पार्ट करने में, इनकलकेट करने में हमारे बच्चों में। तो जैसा कि अभी हम जानते हैं कि हम सब लोग एक डिजिटल लाइफस्टाइल जी रहे हैं। दिस डिजिटल लाइफस्टाइल हैज अफेक्टेड ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ इंक्लूडिंग पेरेंटिंग। अभी कितने लोग होंगे जो बच्चा रो रहा है, हम एक फोन दे देते हैं हमारे बच्चे के हाथ में, एक मोमेंटरी डिस्ट्रैक्शन के लिए कि मोमेंटरी पीस मिल जाएगा, मुझे खाना तो खाने देगा, एक वीडियो देख लो यूट्यूब पे, watch something. We just hand over the phones to our children without even thinking anything. And therefore, our children are learning everything online. हमारे बच्चे हर एक चीज ऑनलाइन सीखते हैं, from TV shows to YouTube videos, and much so that these videos and these shows are not even age appropriate. हम कितना चेक रखते हैं अपने बच्चों पर, कितना रख पाते हैं? That is the question. Because these videos are often, age inappropriate, and they just do not teach anything good or morality wise to our children. How are our kids then going to learn the sense of right and wrong? हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हमारे बच्चे एक स्पॉन्ज की तरह होते हैं। जो भी वो देखते हैं, जो भी वो सुनते हैं, वो उसको अब्सॉर्ब करते हैं। They absorb every little thing that they see and they hear like sponges. And therefore, it is our responsibility to steer them towards the right path. उनको पुश करना, गाइड करना सही की तरफ हमारी जिम्मेदारी बनती है, right? Because there has been a distraction and diversion from the regular ways of teaching and learning to new digital lifestyle that we have taken on. Therefore, our responsibility grows exponentially as parents and as teachers. So let's kind of understand कि क्या reasons हैं कि हमें ये समय, ये जो पैंडेमिक का समय, अभी पूजा मैम बात कर रही थी, जिसकी सोनू मैम बात कर रही थी, कि this pandemic that we are faced with, what are the reasons to use this time, this crucial time, to impart values and morals to our children? Why is it important? Because values build character. They help your child lay the foundation. They are the core of the character they are going to be. हमारा बच्चा जैसा बनेगा, उसकी जो नींव है वो morals और values होते हैं. And now that you are blessed with so much of time with your children, why don't we use this time to lay that strong foundation of a good character for our children? Right? What else? It helps tell right from wrong. हमारे बच्चों को क्या सही है, क्या गलत, इसकी पहचान में फर्क करवाने के लिए it is very important that they understand morality, that they understand values, and that we teach them the right values. बच्चे तो अलाउड है या नहीं चोरी करना? स्कूल में आते थे, and this is a very common problem. The teachers here would agree to it. बच्चा घर आता है एक इरेजर लेकर जो आपने उसको लेकर नहीं दिया, and you ask him ये कहाँ से लिया, वो बोलेगा वो शाम के बैग में पड़ा था या राधिका के बैग में था, मुझे अच्छा लगा मैंने ले लिया. What are you going to do? The child doesn't understand what is right and what is wrong. The child doesn't know that taking an eraser without permission
without even asking for it from somebody else's bag is wrong. पेंसिल छीन लेना, धक्का दे देना, क्या सही है क्या गलत है, ये आपकी वैल्यूज, आपकी मोरालिटी हमारे बच्चों को सिखाएगी. And when we teach our children, what is right, what is wrong, they perceive the world. They, develop a perception कि लोग कैसे हैं, world कैसा है, उनके आसपास की society कैसी है और कैसा उनको treat करेगी. And when they grow up, this morality determines the adult behavior. So your child, if he is sitting, आपका बच्चा बैठा है और आप उससे किसी ने उसकी डॉल छीन ली या एक टॉय छीन लिया, उसने जोर की धक्का दे दिया दूसरे बच्चे को, तो आपने उसको कुछ नहीं कहा. If the child has done something wrong and nobody bothers to correct them, उसको बिल्कुल टोका नहीं, कुछ बोला नहीं, तो वो बच्चा क्या डेवलप करेगा, वो एक परसेप्शन डेवलप करेगा कि ये एब्सोल्युटली ठीक है, इट्स परफेक्टली ओके टू बिहेव दिस वे एंड ही इज गोइंग टू डू दैट. Until these small mistakes, snowball into a grand scheme and our children become something that we can't even think of them becoming. हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे बड़े होके कुछ बुरा काम करें, लेकिन उसकी शुरुआत तो अभी हो चुकी है. So we have to intervene at the right time because our intervention is going to counter these children with the bad influences. It is going to help them cope with the difficult situations जो आगे चल के आएंगी, and it is also going to make them secure. उनको सेल्फ एस्टीम, उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ती है जब वो कुछ अच्छा काम करते हैं, राइट? They are going to think about other people. They are going to value people around them. So it's very important that our children learn morality and values at the right age from the very beginning. हम सब जानते हैं कि it's important कि हमारा बच्चा moral values डेवलप करे, but it's important to understand कि morality को सिखाने की या डेवलप करने की सही एज क्या है. Morality, moral values develop continuously at a steady pace throughout the lifespan. For example, a newborn baby, an infant, जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं वो ये बात जानते होंगे, या आप भी लुक बैक करें तो आप ये जानते होंगे कि जब बच्चा छोटा होता है, an infant, उसको राइट और रॉन्ग का कोई सेंस नहीं है, सही क्या है गलत क्या है उसका कोई सेंस नहीं है, लेकिन वो वही करेगा जो उसको उस वक्त मन कर रहा है. वो पेरेंट्स को भी एक्सपेक्ट करेगा कि वो मुझे सपोर्ट करे, because there's no sense of right and wrong. लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, बच्चा चीजें सीखता है. So for example, a 2-year-old child, जब बच्चा 2 साल का है तो वो obedience सीख जाता है. आप उसको जोर के बोलो नो, अब वो चुप हो जाएगा. वो आपकी बात सुनने की कोशिश करेगा, समझने की कोशिश करेगा. एंड जैसे जैसे और बड़ा होगा, फॉर एग्जाम्पल a 4-year-old child, जब बच्चा 4 साल का है तो वो ओबीडियंस तो जानता है, वो अथॉरिटी को रिस्पेक्ट करना भी सीख जाता है. जब मैम उसको कुछ बोलती है, फोन पे क्लास चल रही है, मैम ने बोला ऐसा करना है, तो वो डर के करेगा. उसको मालूम है, बच्चे बोलते हैं ना मैम ने बोला है ये सही है. So if ma'am is saying something, it is absolutely correct to the child because they respect that authority. They admire and they appreciate that authority and they understand that what the authority is saying is correct. Similarly, when the child, ages and they grow, then there's a conceptual change कि कौन सही हो सकता है. So moral values keep developing constantly. But who are the first moral anchors? कौन है जो सबसे पहले बच्चे को morality सिखाएगा? वो हम as teachers नहीं हैं, वो आप as parents हैं. आप लोग बच्चों को सिखाओगे कि morality क्या है, values क्या है, क्योंकि वो रोजाना, हर मिनट, हर दिन, हर घंटे वो आपको देख रहे हैं और आपसे सीख रहे हैं, because they love you, they trust you and they share a bond with you. So what can you as parents do? Morality values सिखाने के लिए, अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ क्या कर इम्पोर्टेंट है मैं इसकी बात नहीं करूँगी, मैं ये भी देखना और बताना चाहती हूँ कि क्या क्या किया जा
you know, आपके दिमाग में for example honesty. What is honesty? It's a theory. It's something that it's a concept. लेकिन आप अपने बच्चे को कैसे सिखाओगे? उसको प्रेज कर नहीं. You have to make it relevant to his world. That's number one. आप उसको morality को उसके एज पे, उसके रिलेशन में, उसके रेलेवेंस पे लेकर आइए, क्योंकि वैल्यूज बहुत प्रोडक्टिव हैं. तो फॉर एग्जाम्पल, हम कल रात को लेट सोए, तो आज सुबह उठ के मेरा बच्चा क्लास अटेंड करना चाहेगा या नहीं करना चाहेगा, उसको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये बच्चे को डिसाइड करने के लिए मॉरलिटी एंड वैल्यूज का रोल है. छोटी छोटी चीजें, हम मॉल में गए शॉपिंग के लिए, उसको एक डॉल पसंद आई, उसको इमीडिएटली वो डॉल लेना अलाउड है या नहीं. All these things are related to your child and at his age. Whether or not he is allowed to make fun of his own friends, you have to make it relevant to his world, to his age group. Second is be aware of what you are modeling. जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे बच्चे हमें हर वक्त देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, हमें समझ रहे हैं, and they're trying to ape. हमारे बच्चे बंदर हैं. They copy us like monkeys and ape us in whatever ways. So be aware of what you're modeling. Don't talk about honesty when you are lying in front of your children. हाँ जी, आप कहाँ पे पहुंचे? आपको तो 10 मिनट में आना था. अरे मैं निकल गया, मैं रास्ते में हूँ, जबकि आप घर पे. Your child is watching that. Your child is seeing that you are in home and you're saying that you're on the way. You're saying that you're not well while you are okay. So do not lie when you're teaching of honesty to your child. Be aware, be conscious of what you're saying. You have to encourage your children to follow and act, what is right. You have to appreciate them. उनकी तारीफ करो, उनको praise करो. उसने अपनी बहन के साथ, अपने भाई के साथ अपना टॉय या अपना खाना शेयर किया, you appreciate. Wow, this is so sweet of you that you just shared your food, that you just shared your doll, you just shared your toy with your sibling, with your elder sister. That's really sweet of you. Label that positive behavior. Tell him that it's very generous of you. It is being generous that you are sharing. It's being so sweet that you're forgiving your child, your friend. उसने गलती करी, आपने माफ किया. I am so proud of you. उसको बताओ, उसको अप्रिशिएट करो. जब भी आपके बच्चे आपसे कोई सवाल करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको समझाना मुश्किल हो सकता है या वो रूल्स समझाने उसको मुश्किल हो सकते हैं, हेजिटेट मत कीजिए. हर आंसर दीजिए, हर सवाल का जवाब दीजिए अपने बच्चे को, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है. उनको एक्सप्लेन कीजिए कि उनका हर एक बिहेवियर का एक कॉन्सिक्वेंस है, उसका एक इफेक्ट है उन पर भी और उनके आसपास लोगों पर भी. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा लड़ाई करके आता है घर स्कूल में बच्चों से, तो उनको बताओ कि बेटा अगर आप बुली करते रहोगे या लड़ते रहोगे तो आपके साथ क्या होगा और उन बच्चों के साथ क्या होगा. द कॉन्सिक्वेंसेस दैट नोबडी इज गोइंग टू प्ले विद यू लेटर. You are going to not have friends. So tell them about the consequences because it's important. Morality क्या होती है? बच्चे की एक समझ कि हर एक्शन का एक consequence है. And then giving them the freedom to decide क्या सही क्या गलत. Right? हमें उनको सिर्फ बताना नहीं है, उन्हें able बनाना है ये समझने में कि क्या सही है क्या गलत है. And कभी भी लेक्चर मत दो बच्चों को, क्योंकि लेक्चर देने से आप सिर्फ वन साइडेड कॉन्वर्सेशन कर रहे हो. एंड वन साइडेड कॉन्वर्सेशन यहाँ नहीं बैठती. इट डजंट स्टे विद देम. सो व्हाट यू कैन डू इंस्टेड इज इन्वॉल्व देम इन डिसीजन मेकिंग. अभी घर में इतना टाइम है, आप जो भी डिसीजंस लेते हो उनसे पूछो, उनको जवाब दो, उनसे डिसीजंस लो, उनके साथ बैठ के उनको इन्वॉल्व करके उनको चीज़ें सिखाओ, उनको बताओ. फॉर एग्जाम्पल डेली लाइफ सिचुएशंस उठाओ. आपसे आपकी सिस्टर ने, आपके ब्रदर ने डॉल छीन ली, आपने उसको मार दिया, लेकिन आप और क्या कर सकते हैं? उनको सोचने पर मजबूर करो. It's very important that we involve them in daily life activities because it not only creates a sense of self-esteem and self-confidence, but it also helps them understand how life works, understand how things work. So you are treating them as adults, and when you treat them
taking too long. I'll just wind up, Sonoma. So you have to be ready of beautiful changes that are going to come your way. अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाना एक बहुत ही छोटी एज से उनको हेल्प करता है कि वो अपनी लाइफ में अपना पर्पस समझे. एंड जैसा कि अभी पूजा मैम पेरेंटिंग के बारे में बोल रही थी, तो देयर इज वन थिंग दैट आई ऑफन से दैट पेरेंटिंग के लिए कोई मैनुअल नहीं है, कोई एक तरीका नहीं है. बच्चे आपके हैं, तरीके भी आप ही के होंगे. It is one journey. It will have its own ups, it will have its own lows. But it's a journey that you travel, and it's the best traveled when you explore it. There's no right and wrong. Explore with your own children. Spend as much time as you can, because this change that you spend with them is going to, define all the coming years. So, Thank you, Nehal ma'am. all the very best to all you out there, and thank you so much. Thank you. Thank you, Nehal ma'am. Now, I would like to invite our eminent speaker, Dr. Gitanjali Kumar, for guiding us on the topic of parenting. As Nehal ma'am said, parenting is a very wide term. It's not a small term. Parenting, now ma'am will definitely going to just guide us regarding this. परवरिश कोरोना में मुश्किल है पर मुमकिन है. Welcome ma'am. Thank you so much, Sonaji, for inviting me on this platform of yours. I thank the management of the school जिन्होंने ये मौका मुझे दिया. मैं शुक्रगुजार हूँ नेहल की, जिसने मुझे एक मेंटर का ओहदा दिया. अच्छा लगता है कि जब छोटे बड़ों को ये सम्मान देते हैं, कहीं ना कहीं अपने ही समाज के संस्कार नजर आते हैं. और एक वो कहते हैं ना, एक प्राउड माली की तरह मैं इस ओहदे को एक्सेप्ट करती हूँ विद लॉट ऑफ हैप्पीनेस. बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से मम्मी पापा और टीचर्स बच्चों की अकम्पलिशमेंट्स, बच्चों की अचीवमेंट्स पर खुश हो जाया करते हैं. सो नेहल, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर दोस काइंड वर्ड्स. और पूजा मैम ने बहुत लुभावने तरीके से इंट्रोड्यूस किया, और सोनू मैम ने भी बहुत अच्छे लफ्जों में बहुत कुछ कह दिया. बट इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, जो बहुत उत्सुकता से इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, वक्त से पहले आ चुके थे, और वो जो नन्हे मुन्ने गुड इवनिंग मैम कह के अपनी मैम की अटेंशन लेने की कोशिश कर रहे थे. मैं आप सबकी मैम तो नहीं हूँ, लेकिन चाहूंगी कि आप नजरों के साथ, कानों के साथ और दिल के साथ अगर जुड़ जाए थोड़ी देर के लिए, तो मुझे मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी. थैंक यू सो मच. मैं किसी भी एक्सपर्ट की तरह बात नहीं करना चाह रही. नेहल ने आप लोगों को वैल्यू बिल्डिंग पर बहुत कुछ बदला दिया है. मैं तो सिर्फ एक पेरेंट के तौर पे बात करना चाह रही हूँ. 26 साल मेरी उम्र है एज अ पेरेंट. वैसे इससे कहीं ज्यादा है, बट चूंकि बेटा 26 साल का है, तो 26 साल पहले माँ का दर्जा मिला था, और बड़े चौड़े सीने के साथ इस दर्जे को निभा रही हूँ. और इस 26 साल की जर्नी में बहुत कुछ उसने सिखा दिया और मजबूर कर दिया कि मैं बहुत कुछ भूल जाऊं. और यही शायद मेरी पेरेंटिंग का सार भी है, that parenting is little about learning but much more about unlearning. हमें सीखना तो थोड़ा है, लेकिन बहुत कुछ जो सीखा हुआ है उसे भूल. हम पेरेंटिंग के बारे में सीखते कहाँ से हैं? हम सीखते हैं अपने माता पिता के तौर तरीकों से. हम सीखते हैं अपने समाज में जो चीजें हम देखते हैं. हम सीखते हैं अपने संस्कारों से जो हमें इर्द गिर्द हर जगह से मिलती. लेकिन वो तौर तरीके, वो लहजे, वो संस्कार जब हमारे बच्चे जीवन में आते हैं, तब वो थोड़े से बेमायना हो जाते हैं, क्योंकि समय बदल चुका. तो इस नए समय की पौध को बड़ा करने के लिए नए समय की खाद की, नई तरह की भूख की, नए तरह के H2O की जरूरत. तो अकलमंद माली यही वही होगा जो नई पौध के लिए नया साजो सामान इकट्ठा करे. मैं तो पेरेंट्स का गुणगान हमेशा करती हूँ, और आज अपने पेरेंट्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा
चाहूंगी सिर्फ ये चंद अल्फाजों के साथ, मेरी दुनिया में की जो शोहरत है सिर्फ और सिर्फ मेरे माँ बाप की बदौलत है। आई थिंक हम सब यहाँ पर इसी तरह के वैल्यूज को, इसी तरह के सेंटिमेंट्स को एको करेंगे कि हम जो भी कुछ हैं उसमें हमारे पेरेंट्स की बहुत कंट्रीब्यूशन आई है। और इस कोविड-19 के दौरान तो शायद पेरेंट्स ने अपने कामों का सिलसिला जैसे भी चलाया, साथ में सिर्फ बच्चों के साथ समय बिताया। मैं मार्च 22 के बाद के समय को दोहराना नहीं चाहती, क्योंकि हम इन 9-8 महीनों में काफी आगे भी आ चुके हैं। अब वो लॉकडाउन भी नहीं रहे, अब तो अनलॉकिंग का समय आ गया है। तो मैं यही सोच रही थी कि घर में इनको बिजी रखने का चैलेंज तो हम सब ने पार कर लिया। अब तो ये है कि कैसे, कितना ये बाहर जाए, कितना ये घर में रहे, बाहर जाए तो क्या चीजों की ताकीद हम इनके साथ करें, किन कॉशंस के साथ इन्हें बाहर भेजें। शायद हमारा स्ट्रगल फिर भी चल रहा है, बट स्ट्रगल की का रूप रंग बदल गया है। डेफिनेटली डिसिप्लिनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है। नेहा बहुत अच्छी बात आपसे कह रही थी कि बच्चों को वो जो भी सिखलाना चाहते हैं पहले रुक करके आप घर में हैं और आप कहें कि मैं निकल चुका हूँ, तो सच और झूठ की कंफ्यूजन तो हमने खुद देती है। मैं भी इसी बात को दोहराऊंगी कि बच्चों के लिए कुछ भी सिखाना चाहते हैं, जो भी बच्चों को बनाना चाहते हैं, पहले वैसा बच्चे तो कुएं के समान है, जिसमें जो आवाज आप डालेंगे वही आवाज वापस खुल के हमारे पास चली। अगर आप उन्हें काइंड बनाना चाहते हैं, कर्टियस बनाना चाहते हैं, तो हमें थैंक यू प्लीज का भरपूर से हम घर में रहने वाले फर्दों के साथ अगर मुस्कुराहट से बात करेंगे, अगर रिस्पेक्ट के साथ इज्जत से बात करेंगे, अगर एक जिसको कहते हैं ना, जितनी कर्सिस और मैनरिज्म हम चाहते हैं अपना बच्चा सीखे, हम उसका उपयोग घर में शुरू कर दे। बहुत लैविशली हम गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग का इस्तेमाल घर में शुरू कर दें, बच्चे खुद ब खुद देख के हमें फॉलो करने लग जाते हैं, हमें कह के नहीं कराना पड़ता। मैडम जबरदस्ती बिल्कुल मत दिखाइए, क्योंकि इनके नन्हे जनाब के लिए तो सुनने के लिए है भी कुछ नहीं। खेलने दौड़ने दीजिए घर के अंदर, आप इत्मीनान से हमें सुन लें, वही काफी। दिस प्रोग्राम इज ओनली फॉर पेरेंट्स। तो बच्चों को जब हम जबरदस्ती बिठाते हैं ना, तो बैठ के वो खुश भी नहीं होते, लेकिन बच्चों का फिर दिल कैसे बहलाएंगे। इस पैंडेमिक के टाइम पर हमें कुछ और समझ में नहीं आया, क्योंकि हमें बच्चों को एक सामान्य सा जीवन देना था। उस सामान्य से जीवन को देने के लिए उनके सामान्य जीवन में स्कूल का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पाएंगे, हमने स्कूल को बच्चों के घर में, बच्चों के कमरों में पहुंचा दिया। इसमें टीचर्स का बहुत बड़ा श्रेय था। मेरे ख्याल से पूरा समाज इस वक्त डॉक्टर्स के बाद अगर किसका ऋणी है तो वो टीचर्स का ऋणी है, क्योंकि इतने एक्स्ट्रॉर्डिनरी टाइम्स में, इतने डिफिकल्ट टाइम्स में एक सामान्यपन का एहसास अगर मिला है तो वो टीचर्स के द्वारा मिला है, क्योंकि बच्चों का स्कूल लगभग जारी रहा है। और वो जो छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने पहली बार स्कूल में कदम रखने थे, वो नन्हे कदम अपने उन नए बैग्स के साथ, अपने यूनिफॉर्म्स के साथ तैयार थे। वो कहते ना, सेना बिल्कुल तैयार थी सामना करने के लिए, लेकिन सेना को हॉल्ट के लिए बोल दिया गया, इन बच्चों को पॉज के लिए बोल दिया गया, और अब तक बेचारे पॉज पर हैं। बस थोड़ा सा समय और है, पॉज खत्म होने वाला है, फिर वो राइज एंड शाइन का समय आएगा। लेकिन इस वक्त हम चूक नहीं कर सकते, हम कोई भूल नहीं कर सकते। We'll have to be very very careful with our children. I understand कि as मम्मी पापा हमारे ऊपर बहुत सारे स्ट्रेसेस, बहुत कुछ है जो हमें नॉर्मल करना है। स्कूल्स ने तो पढ़ाई आपके लिए पहुंचा दी, असाइनमेंट्स दे दी, वर्कशीट्स दे दी। आप देखिए टीचर किस तरीके से आपके बच्चों को कहानियां सुना रही हैं, कविताएं सुना रही हैं, डूज एंड डोंट्स दे रही हैं, अल्फाबेट सिखा रही हैं, नंबर्स इंट्रोड्यूस कर रही हैं, सब कुछ सिखला रही हैं। सब लोग इतना रिहर्सल करके, सब लोग इतनी तैयारी के साथ एक सामान्यपन आपको दे रहे हैं, लेकिन ये सामान्यपन आपके जीवन में कितनी सरसता लाया है, ये हर एक का अपना अपना जवाब होगा। आई डू अंडरस्टैंड कि हमें
हर चीज का स्ट्रेस है। हमें हमारी नौकरियों के बारे में सोचना है, अपने आमदनी के जरियों के बारे में सोचना है, अपने बिगड़ते ठुठकते रुकते हुए बिजनेसेस को ट्रैक पे लाना है। बहुत कुछ है जो हमें करना है। बड़ी सारी इंस्टॉलमेंट्स रुक गई हैं, बहुत सारे कर्जे आ गए हैं, कैसे होगा सब कुछ। इन सब चिंताओं में, इन सब परेशानियों में सिर्फ और सिर्फ मन बहलता है जब ये मुस्कुराते हुए चेहरे आपके सामने खिलखिला के हंसते हैं। इनकी मुस्कुराहटों में थोड़ी देर के लिए सही अपने दुख भूल जाइए। भगवान ने आपको इस इतनी खूबसूरत दौलत से नवाजा है। इस दौलत को इंजॉय कीजिए, शुक्रिया अदा कीजिए कि भगवान ने आपको माता पिता का दर्जा दिया है जो भगवान से भी कहीं ऊंचा होता है। मैं हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे पेरेंट्स से ये कहती हूँ, फर्स्ट लेट्स फील अ सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड फॉर बीइंग अ पेरेंट। आप और हम इस दौलत से नवाजे गए हैं जिस दौलत के लिए दुनिया में अनगिनत लोग तरसते हैं। डू वी फील अ सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड? कोटि कोटि धन्यवाद उस प्रभु का जिसने हमें इन बच्चों से नवाजा है, इस दौलत से नवाजा है। जब हम इस शुक्रिया, इस ग्रैटिट्यूड, इस एप्रिसिएशन की भावना को अपने मनों में सींचेंगे तो कहीं ना कहीं मन में सब्र और शांति आती है, जो बहुत जरूरी है इस समय पर हमें महसूस करना। क्योंकि चीजें अभी भी असमान है, अभी भी अस्वाभाविक चल रही हैं, अभी भी आपके प्लान्स बहुत ज्यादा दूर है रियलाइज होने में। कल क्या होगा, कल आने वाला कल कैसा होगा, बहुत सारी शंकाएं, बहुत सारी चिंताएं हैं जिन इन समस्याओं का कोई निवारण आज की घड़ी में नजर नहीं आता। लेकिन नजर क्या आता है? नजर आती है नन्हे मुन्ने की मुस्कुराहट, नजर आती है इनकी आंखों की चमक, नजर आता है इनका खिलता हुआ चेहरा जब वो कहते हैं मम्मा आई लव यू, डैडी यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड, पापा मम्मी आई लव यू। तब इस वक्त उनके साथ होड़ मत कीजिए कि मम्मी ज्यादा अच्छी लगती है या पापा ज्यादा अच्छे लगते हैं। हर माता पिता को बड़ा मजा आता है ये सवाल पूछने में अपने नन्हे मुन्नों से। यकीन जानिए ये सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाला सवाल है बच्चों के लिए। बच्चे कैसे चुनाव करें अपनी दाइयां और बाइयां? बिल्कुल वैसे ही जब बच्चा बड़ा हो जाता है और आपसे कहता है आप दीदी को प्यार करते हो, मुझे नहीं करते, तब आप उन्हें समझाते हैं, तब आप उनसे कहते हैं, तो फिर उनको भी इस शंका में मत डालिए। दो मोस्ट स्टेबल एंकर्स जो है उस बच्चे के जीवन में, उसके माता और पिता, प्लीज उनके बीच में कोई होड़ ना रहे। just be those stable anchors in their life। एक और बहुत बात जिस पर मेरा हमेशा यकीन रहता है वो ये है कि बच्चे जो हैं वो क्या चाहते हैं हमसे। बच्चों के लिए सबसे प्लेजेंट गिफ्ट क्या हो सकता है? आपके लाए हुए महंगे खेल खिलौने नहीं। इस कोविड टाइम ने हमें ये तो सिखला दिया कि हम किसी भी चीज के साथ दिल बहला सकते हैं। थोड़ा है और थोड़े में भी जिंदगी बहुत खूबसूरत बिताई है। हमने कुछ भी पिज्जा बर्गर्स कितने 1.5-2.5 महीने तो बिल्कुल नहीं खाए, लेकिन उसके बिना भी हमने भरपूर पेट भर के खाना खाया। हम कहीं मॉल्स में नहीं गए, हमने कहीं पे कोई आउटिंग्स नहीं की, लेकिन फिर भी हमने अपने जीवन में बहुत प्लेजेंट टाइम्स बिताए हैं। लेट योर चिल्ड्रन एप्रिशिएट दोस लिटिल थिंग्स। बच्चों को वो छोटी छोटी खुशियों की इंपॉर्टेंस दिखलाइए। बतलाइए कि जीवन कितना खूबसूरत है, बतलाइए कि जीवन कितना अनमोल है। और इस वक्त लग्जरी वो 5 स्टार में जाना, वो एक एयरक्राफ्ट में बैठ के घूमने जाना नहीं है। लग्जरी है कि हमें हॉस्पिटल की शक्ल नहीं देखनी पड़ी। लग्जरी है कि हमें खांसी जुकाम की दवाइयां नहीं खानी पड़ी। लग्जरी है कि हमारे ऊपर एक छत है। लग्जरी है कि बदलते मौसम के हिसाब से हमारे पास अनुकूल कपड़े हैं। ये लग्जरीज है जीवन की और जो हम सबके पास अनगिनत है। छोटी छोटी चीजों से बच्चों को एप्रिशिएट करना सिखाइए, थैंक यू कहना सिखाइए, कॉम्प्लीमेंट देना सिखाइए। जब तक घरों में आपके पास मदद के रूप में वो स्टाफ नहीं आ रहा था तो कितनी मुश्किल लग रही थी जिंदगी। दादी भी कुछ सब्जियां काट रही थी, पिताजी भी वो डंडे वाले पोछा से पोछा लगा रहे थे और बच्चे को हमने डस्टिंग करने भी सिखला दी थी। एक दूसरे की कदर आ।
पता चल रहा था कि मुट्ठी कितनी जरूरी है, मुट्ठी के लिए कितनी सभी उंगलियों की एक इम्पोर्टेंस है। तुम दिन भर क्या करती हो, आप दिन भर क्या करते हैं, आप ऑफिस में क्या करते हैं, सब कुछ नजर आता है। क्योंकि ऑफिस भी घर में था और घर भी घर में था, रसोई घर से ड्राइंग रूम तक भी आ गई थी और बेडरूम से ऑफिस निकल के डाइनिंग टेबल तक भी चला गया था। तो ये सारे सफर हमने अपने घर की चार दीवारियों में तय कर लिए। जीवन को सही रूप से हर एक की नजर से हमने देख लिया। सो वी लर्न टू एप्रिशिएट एवरीबॉडी इन द फैमिली, वी लर्न टू रिस्पेक्ट एवरीबॉडीज वर्क। और जब हमारे स्टाफ और हमारी हेल्प लौट के आए तो कितना सुकून आया। तो उनके लिए भी एक शुक्रिया बनता है। कल ही किसी से बात कर रही थी तो मुझसे कहते हैं कि आपको कोरोना से डर नहीं लगता है, आपने हेल्प वापस बुला ली है। मैं इस सवाल का जवाब देती इससे पहले वो कहती कि उन्होंने मुझे आगे से कहा, हाँ आपको तो कोरोना हो चुका है तो आपको डर नहीं है ना कि आपको कोरोना नहीं हो सकता। तो मैंने उनसे कहा कि ये वाला ख्याल तो आया नहीं, पर आपने दे दिया तो मेरा इत्मीनान बढ़ गया है। और मेरे मन में तो ये ख्याल था कि दुख से दुख चलता है, मेरा घर किसी के घर से चलता है, किसी का घर मेरे घर से चलता है। सो कोऑपरेटिव लिविंग का इससे बढ़िया एग्जाम्पल क्या हो सकता है। जितना मर्जी सोशल साइंस में, जितना मर्जी हिस्ट्री की किताबों में बच्चे यूनिवर्सल ब्रदरहुड, शांति, सर्व शांति की बातें सीख लें, वसुधैव कुटुंबकम की बातें हमने सिखला लें, लेकिन अगर हम घर में अपने व्यवहार में अपनापन नहीं लाएंगे, कंसिडरेशन नहीं लाएंगे, दया भाव नहीं लाएंगे, सहानुभूति नहीं लाएंगे, अनुभूति नहीं लाएंगे एक दूसरे के दर्द की, और उससे पहले कुछ नहीं, किताबों का ज्ञान अभी अधूरा रह जाएगा। तो अपने घरों में इस तरह से व्यवहार कीजिए कि बच्चों को एक दूसरे का दुख महसूस हो सके, समझ आ सके, बच्चे एक दूसरे के साथ रिस्पेक्टफुली बात कर सके। सो मेड का हमारे घर में आना जरूरी है क्योंकि उसके घर का चूल्हा भी इसी तरीके से चलेगा। कल एक इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा, एक मार्केट में सामान खरीदने के लिए गई, तो वो जब सामान ले रहे थे तो दुकानदार ने कहा कि मैडम, हम ये जो कपड़ा आप पसंद कर रही हैं इसके बगल में कपड़ा देखिए, इस कपड़े के मास्क बड़े सुंदर बनते हैं, देखिए मैंने मास्क पहना हुआ है, हमारे यहाँ टेलर है जो स्टिचिंग भी करता है, तो आप स्टिचिंग करवाएंगी। तो मैंने उनसे कहा कि अभी तो स्टिचिंग का मन नहीं है, लेकिन अगर आपका टेलर मास्क इतने बढ़िया बनाता है और आपने पहना भी हुआ है, आप मास्क क्यों नहीं बनवा के यहाँ रख लेते, तो हम कपड़े के साथ मास्क भी खरीद लेंगे। आजकल तो हमें सबको मास्क की जरूरत है। उस दुकानदार ने जो मुझे जवाब दिया, उस जवाब ने मुझे लाजवाब कर दिया, और कहीं मुझे ऐसे लगने लगा कि पोथी पोथी पढ़कर भी कोई ज्ञान नहीं आता, ज्ञान तो जीवन से मिलता है। वो दुकानदार ने मुझसे कहा कि मैडम, इस वक्त जो मार्केट में व्यवसायों का हाल है, बिजनेस का हाल है, उसमें बहुतों के बिजनेस रुक गए हैं, तो बहुत सारे लोग मास्क बना के बेच रहे हैं, हम उनके पेट पे लात नहीं मारना चाहते, हमारा काम कपड़ों से बहुत बढ़िया चल रहा है, हम सिर्फ कपड़ा बेचेंगे, वो मास्क बेचेंगे। तो मुझे मेरी थाली में जितनी रोटी परोसी उस भगवान ने वो मंजूर है, लेकिन मैं एक नवाला भी दूसरे की थाली से अपनी थाली में नहीं डालूंगा। ये संयम, ये सब्र, ये शांति, I think this is what our children need to learn in terms of satisfaction and contentment. ये greed का, होड़ का, हर हवस का, हर चीज को अपनाने का, हर चीज को लेने का तो कोई अंत ही नहीं रहेगा। एक और, once more, ये दिल मांगे मोर, हमने तो एड्स भी ऐसे बना दी, चाहे वो पेप्सी की एड हो या कोई ओरियो की एड हो या आइसक्रीम की एड हो, हमको पोसेस करने में, अपनाने में और की दौड़ में भागते चले जाते। बच्चों को रुकना सिखलाइए, बच्चों को महसूस कराइए कि मन भी भर गया और पेट भी भर गया। पेट तो भर जाता है, मन नहीं भरता। बच्चों के मनों में कि जो तृष्णा बैठती है उस तृष्णा को शांत करने बच्चों को सिखलाइए, बच्चों को नमन करना सिखलाइए, और साथ ही में अगर बच्चे ये सीख पाए कि मम्मी पापा एक है, एक टीम है, माँ ने बात न मानी तो पिताजी ने बात सुन ली, पिताजी ने मना किया तो माँ के सामने दो आंसू बह गए और माँ मान गई, सुनो जी आप तो यूं ही मना करते हो, करने दो। जब करने दो हो गई तो बच्चे ने देख लिया कि ये टीम कच्ची है, इस दीवार में मोरी है, उस मोरी से वो गुजर जाएगा। तो अगर हम डिसिप्लिनिंग की बात कर रहे हैं तो पेरेंट्स हैव टू बी लाइक मोर लाइक अ टीम। उस टीम में दरार नहीं आ सकती,
एक दूसरे से नहीं मिलते, अगर आपके मनों में कोई मतभेद है, उस मतभेद को अपने कमरों में प्रिवेसी में सॉर्ट आउट कर लीजिए। बच्चों के सामने आपके डिसएग्रीमेंट्स ना आए तो बेहतर रहेगा। बच्चों के सामने आप एक टीम बन के नजर आए तो बेहतर रहेगा। अगर बच्चा ये कहता है कि आप ये ले दोगे, मम्मी ने ये मना कर दिया है, तो कहीं ना कहीं हाँ कहने की जल्दी मत कीजिए। मम्मी ने क्यों मना किया, पहले मम्मी से पूछ तो लें। मम्मी ने भी तो कुछ सोच के मना किया था। एक दूसरे की इज्जत बनाना आपका। जब एक माँ कहती है ना, आने दो पापा को, शाम को बतलाऊंगी, मैं तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी, मैं अभी पापा को फोन करती हूँ। जब हम इस तरह के वार्तालाप करते हैं, हम अपनी इमेज, अपनी पोजीशन खुद ही कम करते हैं। तो बच्चा फिर उस पेरेंट को, स्पेशली माँ को, वो दर्जा नहीं दे पाता जो वो पिताजी को देता है, क्योंकि फिर बिजनेस तो डैड के साथ होगा ना। आप रहने दो, मैं अपने आप डैड से बात करूंगा, मैं अपने आप पिताजी से सॉर्ट आउट कर लूंगा। तो वो 4 साल का या वो 8 साल का या वो 14 का या वो 24 का, फिर वो ऐसा बाईपास बनाने लगता है। फिर माँ को शिकायत हो जाती है, मुझे तो कुछ समझता ही नहीं, मुझे तो कुछ मानता ही नहीं है। तो ऐसा काम नहीं करना। एक जमाना था जब हम हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग की बात करते थे, क्योंकि हेलीकॉप्टर जैसे ऊपर उड़ता है, कंट्रोल करते थे हम बच्चों को जीवन। उसके बाद हमने प्रोग्रेस किया तो हम वो टाइगर पेरेंट बन गए, जो बच्चों को पुश करता रहता है, कुछ 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 करते रहो। और आज हम कौन से पेरेंट की बात करें, जो लॉन मूविंग पेरेंट है, जो घास को नरम करता चला जाता है। हम अपने बच्चों के जीवन में से हर स्ट्रगल, हर मुश्किल आसान करने की कोशिश करते जा रहे हैं। इतना कुशन्ड एनवायरनमेंट उनको देते चले जा रहे हैं, वो किसी भी स्ट्रगल के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं है। जूता पहन रहा है तो उसका लेस माँ बांधेगी, लेस माँ खोलेगी, क्यों? अभी तो आजकल आपके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, जरा स्कूल शुरू हो जाने दीजिए। स्टॉप पे मैं देखूंगी कितनी मम्मियां बैग उठाती हैं और कितने बेबीज अपना बैग खुद उठाते। अब तो सरकार ने भी कह दिया 10% ऑफ देयर बॉडी वेट विल बी द बैग का वेट, लेकिन फिर भी हम अपने नन्हे मुन्नों को इतना सा भी काम नहीं करते। तो इन नन्हे मुन्नों से छोटा छोटा सा काम कराते रहिए, इनको रफ एंड टफ बनाइए, क्योंकि जीवन इनके साथ कहीं पर भी नरमी का व्यवहार नहीं करता। चाहे दौड़ने का काम है, चाहे बैठने का काम है, चाहे फ्रिज में से पानी की बोतल से ग्लास में पानी डालने का काम है, रहने दो, तुम गिरा दो, तुमसे होगा नहीं। जब हम ये सब कहना शुरू कर देंगे तो वो मान लेंगे, मैं छोटा हूँ, मुझसे नहीं। कितनी उम्र तक आप इन्हें खुद खाना खिलाते हैं, सच बताएं? गिरा देगा, कपड़े गंदे कर लेगा, फिर नाम की एक चीज होती है, पहना दीजिए, फिर नहीं है तो पुराना वाला छोटा टावर लगा दीजिए। सिखाइए कि खाना खुद खाना है, गराने वाला खुद तोड़ना है रोटी का, क्या साइज करने वाला होगा, कैसे सब्जी में लगाई जाती है, कैसे दाल में भिगोया जाता है और कैसे मुंह तक ले जाया जाता है। ये जितना ये काम बच्चा करता है, बच्चे की ग्रिप बनती है हाथ की, और इसी ग्रिप से बच्चे ने कल को कलम पकड़नी है, चाहे वो चौक हो, चाहे वो पेंसिल हो, या वो कलर पेंसिल हो, या वो पेन हो। इसकी ग्रिप, जो कहते हैं ना फाइन मोटर ग्रिपिंग, यहीं से बच्चा सीखता है। फिर उस गराई को सब्जी में लगा के अपने मुंह तक जब वो लाता है, आई हैंड मोटर कोऑर्डिनेशन, ये जितना काम स्कूल में होना है, उसकी नींव घर में आप भरपूर तौर से रख सकते हैं। अभी भी चंद महीने हैं जब बच्चे स्कूल में नहीं आने वाले, और इस समय का जितना भरपूर आप फायदा उठा सकते हैं, अपने बच्चों के साथ जरूर उठाइए। पूरे दिन में एक रूटीन बना के अगर चल सकते हैं, निश्चित समय पर बच्चा उठे, आप उठे, निश्चित समय पर बच्चा टेलीविजन देखे, कोई अपना कार्टून देखता है वो देखे, कोई गेम खेलना चाहता है वो खेले, क्योंकि स्कूल में इनकी क्लासेस 2 या 3 घंटे से ज्यादा नहीं लगाता। तो अगर 2 या 3 घंटे की क्लासेस हैं, आधा घंटे का अगर ये कुछ टेलीविजन में या लैपटॉप में देखना चाहते हैं, तो कुल मिला के 4 से 5 घंटे तक का गैजेट एक्सपोजर होना चाहिए बच्चों का, और इसको भी स्प्रेड ओवर कर लीजिए दिन में। That is all in terms of gadget exposure which the child needs. इससे ज्यादा स्क्रीन एक्सपोजर इन बच्चों को नहीं चाहिए। लेकिन अगर वो आपको फेसबुक पर स्क्रॉलिंग करते देखेंगे, अगर वो आपको ऑनलाइन शॉपिंग के लिए अमेजोन की बिग फ्राइडे सेल पर घंटों बैठे देखेंगे, तो फिर गड़बड़ हो जाए। फिर उनको भी ये समझ में आएगा कि दिल लगाने के लिए इससे बढ़िया खिलौना नहीं है। और मोबाइल फोन्स को खिलौना मत बनाइए जीवन, ना अपने जीवन में, ना अपने बच्चों के जीवन में। बिंज वॉचिंग जरूरी
थी शायद जब पूर्णतः लॉकडाउन था। अब पूर्णतः लॉकडाउन नहीं है, अब हमें इतना ज्यादा मन लगाने के लिए टेलीविजन का सहारा नहीं चाहिए। अगर पेरेंट्स घर में बैठ के अखबार पढ़ते हुए नजर आएंगे तो बच्चे भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अखबार को उल्टा सीधा पकड़ना शुरू कर देंगे। वो रंगीन एड्स के जो पैम्फलेट्स आते हैं उन्हीं को देखना शुरू कर देंगे। अल्फाबेट रिकॉग्निशन उसी से शुरू हो जाती है, क्योंकि उनमें उनको कैपिटल अल्फाबेट्स नजर आने शुरू हो जाएंगे। रंगों की पहचान वहीं से करा दीजिए, पिक्चर्स की पहचान वहीं से करा दीजिए, पिक्चर से अल्फाबेट का साउंड एसोसिएट करा दीजिए। अ है, ब है, क है, ड। आई एम श्योर सोनू मैडम इसी तरीके की पढ़ाई इन छोटे बच्चों के साथ हो रही है। तो कहीं ना कहीं यहीं से जोड़ देंगे तो बच्चों की रीइंफोर्समेंट भी होती रहती है, बच्चों की मेमोरीज भी बनने लग जाती है। देखिए बहुत सारी न्यूरो स्टडीज हमें कहती है कि पहले 6 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे ब्रेन की डेवलपमेंट इन 6 सालों में हो जाती है और न्यूरॉन्स जितने लर्निंग के लिए एक्टिवेटेड होने चाहिए इन 6 सालों तक एक्टिवेटेड हो जाते हैं। तो इन 6 सालों के समय को अगर हम जीवन भर की जमा पूंजी मानते हुए इनके साथ स्पेंड करेंगे क्वालिटी टाइम घंटों से नहीं नापा जाता। क्वालिटी टाइम नापा जाता है कि आप उस आधे घंटे में भी बच्चे के साथ किस तरीके से उस समय को स्पेंड करते हैं। देखिए खाना खिलाना क्वालिटी टाइम हो सकता है अगर हम खाने के टाइम पर खाने की बातें करते हैं। हम कोई कहानी सुनाते हैं, यस सुना सकते हैं ताकि बच्चा खाना खा सके, लेकिन खाने में इतना खो जाए कि कहानी में इतना खो जाए कि वो खाने के स्वाद को भी भूल जाए, उसे पता ही ना चले कि उसने हाफ रोटी खाई है या 1 रोटी खाई है, तो गड़बड़ हो जाए। टेलीविजन के साथ खाना मत खिलाइए, खाने की आदत मत डालिए। उसके लिए सबसे पहले हम बड़ों को अपना खाना टेलीविजन के साथ छोड़ना, जो हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है, पर हमें करना। रात के वक्त, शाम के वक्त मास्क लगा के नीचे उतरिए, बाहर जाइए, थोड़े से कदम चलिए। जब चल रहे हैं तो आसपास गाड़ियों के रंग देख लीजिए। किसी का डॉगी जा रहा है तो डॉगी से बात कर लीजिए कि डॉगी अपनी आंटी को क्या कह रहा होगा, अपनी दीदी को क्या कह रहा होगा, डॉगी का क्या नाम होगा। कहीं ना कहीं कहानियां बुनना, कहानियां बस में बात करना बच्चों को सिखलाइए। चलो इस डॉगी का नाम रखते हैं। किसी भी तरह की बातें कीजिए, तारों को देखिए, चांद को देखिए, चांद और तारों से कहानियां बनाइए और अपने बच्चों को कहिए, सुनाइए, क्योंकि इसी तरीके से नन्हे मुन्ने बच्चों के जीवन में एक मासूमियत बनी रहती है। और ये मासूमियत इनके बचपन में बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के बदलते सामाजिक परिवेश में बच्चों से इनका बचपन बहुत ज्यादा छूट गया है। और कोरोना का जो सबसे बड़ा नुकसान जिसकी भरपाई हम शायद कभी नहीं कर पाएंगे वो यही रहेगा कि इनका बचपन बहुत छूटा। इन्होंने वो बचपन जिया ही नहीं है 8-9 महीने। ये हम बड़ों के साथ बड़े हो गए, क्योंकि इनके कानों में हम बड़ों की परेशानियां, हमारी विवशताएं गूंजती रही। ये हमारी कश्मोकश में, हमारी स्ट्रगल्स में हमारा हिस्सा बनते चले। तो इनके खेल खिलौने तमाशे कहीं छूट गए, तो अभी जो समय हमारे पास बचा है, क्या हम उन्हें इनके हिस्से का कुछ बचपन लौटा पाएंगे? मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ती हूँ कि कोशिश कीजिए कि आप कैसे इस बचे हुए अनलॉक के समय में, जो अभी हम नियर टू नॉर्मल में है और जब न्यू नॉर्मल में एंटर करेंगे, ये तब तक का जो सफर है, इसमें इनको इनके हिस्से का बचपन लौटा पाएंगे। कोशिश करके देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं? आई एम ऑल देयर। Parents, if you have any questions, please ask ma'am. Gitanjali ma'am is there to answer you. मैम एज नेहा मैम सर कि हम जैसे बच्चों का हम कैसे बिहेव करते हैं बच्चे भी सेम वही चीज़ सीखते हैं। सपोज कि हमें कोई पे तो मैकेनिकल बोल रही अभी हम घर से बाहर निकल चुके हैं, तो बच्चे भी वही चीज़ सीखते हैं, बच्चे भी वैसे करेंगे झूठ बोलना में। बट कई बार हम लोगों की प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस को हम कैसे हैंडल करते हैं? देखिए प्रॉब्लम एक्चुअली में है या प्रॉब्लम हमें लग रही है, और किसी भी प्रॉब्लम का निवारण झूठ बोलने से हो सकता है ऐसा मेरा मानना नहीं है। हमें लगता है कि वो आसान तरीका है, हमें लगता है कि वो एक शॉर्टकट है, उसे शॉर्टकट ना बनाएं और अगर हम
चोरी पकड़ी जाएगी, हमारी कमजोरी निकल के आ जाएगी, हम एक पेडेस्टल से नीचे आ जाएंगे। शायद ऐसी एक संभावना हमारे मनों में रहती है जो हमें झूठ बोलने पर मजबूर करती है। मेरा ऐसा मानना है। नेहल कुछ कहना चाहती है तो नेहल को भी सुन लेते हैं। नेहल may have something to say about it. Yeah. Thank you, ma'am. This is exactly what I wanted to say कि हम लोग अक्सर अपने एक परसेप्शन, अपने बिलीफ्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो हमें लगता है कि झूठ बोलना ही एक तरीका है या बच निकलना उस सिचुएशन से एक तरीका है, और उस चक्कर में हम ऐसी चीज़ें बोल देते हैं बिना सोचे समझे कि उसका हमारे बच्चों पर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो माइंडफुल पेरेंटिंग की बहुत बात की जाती है। गीतांजलि मैम would also know. She can be the best person to tell you all this, but we have to be mindful of what we say. ऐसा बोलते हैं ना कि सोच समझ कर बोलना। तीर जब कमान से छूट जाता है तो उसको आप वापस नहीं ला सकते। So just be very cautious of what you say in front of your children. I am not saying it's going to be easy. It is very difficult. लेकिन छोटे छोटे कदमों से ही, छोटे छोटे स्टेप्स लेने से ही हम एक बड़ी जर्नी को तय कर सकते हैं। और वो छोटे कदम यही है कि हम माइंडफुल रहें एज पेरेंट्स, हम कॉशियस रहें of what we say in front of them, because it is definitely going to affect them. I hope that clears your question, ma'am. यस मैम, आप ऑलमोस्ट ठीक हो, बट मैम प्रैक्टिकली अगर हम लाइफ की बात करें तो कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि अगर हम बिल्कुल सच भी बोलते हैं तो वो भी हम हैंडल नहीं कर सकते। तो हमें कहीं ना कहीं मैम हमें ना लाइफ करना पड़ता है सिचुएशन को टैकल करने के लिए, चाहे वो जॉब हो चाहे वो फैमिली हो, तो कहीं ना कहीं हमें बातों को जो है ना चेंजेस मॉड्यूलेट करना पड़ता है। तो वो हर टाइम आप उसको लाइक का सेंस नहीं कह सकते, और वो हम हर टाइम वो बच्चों के साथ वो नहीं कर सकते कि बच्चों को पहले हम बाहर भेजें या कोई बात करें। वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैम प्रैक्टिकली पॉसिबल मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता। मैम यू आर राइट, आई नो, बट प्रैक्टिकल अगर मैं बात करूँ तो आई थिंक ये चीज पॉसिबल कई बार नहीं होती। ऐसा है क्षितिज गुप्ता की मामा, आपका अपना एक्सपीरियंस है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, सोनू का अपना एक्सपीरियंस है, नेहल के भी अपने एक्सपीरियंस है, बाकियों के भी। किसी के लिए कितना किस हद तक मजबूरी है, किसी के लिए किस हद तक की दूरी है, ये सब अपनी अपनी हम तय करेंगे। आप बच्चों को बाहर भेज सकती हैं, आप जैसा नेहल कह रही हैं, आप माइंडफुल हो गई, आप इस चीज को गौर करने लग गई हैं, इस चीज के इम्पोर्टेंस को समझ रही हैं, तो आप कॉशियस हो जाएंगे। जब कॉशियस हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक ट्रिगर आ जाएगी। और क्या होगा, मैं वर्स्ट को इमेजिन कर लूं अगर, और मैं वर्स्ट को जब मैं इमेजिन कर लूंगी तो मेरा फियर कम हो जाता है। देखिए मैंने आपसे कहा ना 26 साल मेरी भी उम्र है एज अ पेरेंट, और मैंने इस 26 साल में सच्चाई का साथ तो नहीं छोड़ा। और इसी दम पे मैं सिखला पाई कि अगर 2/100 भी आए तो इत्मीनान से घर चले आना और नोटबुक सामने रख, क्योंकि यही डर रहता है जिस वजह से छुपाना शुरू हो जाता है, जिस वजह से झूठ आ जाता है, और उनको भी लगने लग जाता है कि रास्ता आसान है, आप डांटेंगे इसीलिए नहीं बताया, आपको बुरा लगेगा इसीलिए नहीं बताया। बुरा लगेगा उस हकीकत पर कि नंबर कम है, लेकिन उस हकीकत के ऊपर वाला स्टेप इस बुरे को कहीं गुना ज्यादा बढ़ा देगा। तो क्या चाहते हो, थोड़ा बुरा लगना या ज्यादा बुरा लगना? So let the child also take responsibility of the consequences. तो जो आप करना चाह रही है या जहां पर आपको लगता है कि आप ये नहीं ये कर पाएंगी, जो भी कर पाएंगी कीजिए, लेकिन फिर उसके consequences की जिम्मेदारी भी आपकी रहेगी। बस यही कहना है और कुछ नहीं। देखिए कोई पूर्णता सत्य नहीं होती चीज, सबके पास अपने अपने हिस्से का सत्य होता है और सब अधूरे सत्य होते हैं। कोई और सवाल? हेलो गीतांजलि मैम, दिस इज रियांश मदर दिस साइड। ओके मैम एक्चुअली जो मेरा बेटा है 5 इयर्स का है, और उसमें क्या होता है वो सबसे पहले जैसे क्लास में मैंने नोटिस किया है, मैम अगर डिक्टेशन दे रही है या कोई काम कर रहे हैं, मैं सबसे पहले हुआ मामा, मैंने सबसे पहले ही किया। मैम ये कॉम्पिटिटिव हैबिट जो इसकी है, इससे इट इज गुड फॉर अ फ्यूचर, और या फिर कंपैरिजन है, या
सवाल पूछ रही है अगर, तो आपके मन में शंका तो है ही ना। जी मैम, मैं ये पूछा क्योंकि कंपैरिजन बहुत, ये जवाब तो आपका ही है। कंपैरिजन वही मैम, एज अ यू आर जैसे एक्सपीरियंस है आपको, इस हिसाब से मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि इसमें ये चीजें आप मेरे बारे में, जैसे कल इसका एक एक्सीडेंट हो गया, पैर का बिल्कुल मांस फट गया इसके पैर का, और मैं जैसे अपनी मामा को बता रही हूँ, किसी को बता रही हूँ, तो ये कह रहा है कि आप सबको क्यों बता रहे हो मेरे बारे में, आप क्यों बता रहे हो। तो ये चीज भी मुझे लगा कि ये क्या नेचर का पार्ट है इसका, या किसी से ये डिस्कस नहीं करना चाहता अपने बारे में, क्या है मतलब ये। यहाँ पर दो बातें हैं। देखिए, मैं पहले वाली बात जो आपने कही कि कंपटीशन, राहत इंदौरी साहब का एक बहुत ही बढ़िया शेर है जो मुझे याद आ रहा है। आई विल, मेरे ख्याल से उसमें बहुत बड़ा जवाब है। वो कहते हैं चांद ज्यादा रोशन है तो रहने दो, चांद ज्यादा रोशन है तो रहने दो, जुगनू भैया जी मत भारी किया करो। हम सब के पास अपने हिस्से की खूबसूरती है, अपने हिस्से की चमक है। वी नीड टू जस्ट एंजॉय दैट, पहली बात। दूसरी बात, अगर बच्चा आपसे ये कह रहा है कि सबको मेरे बारे में क्यों बतला रहे हो, आप नानी को क्यों बता रहे हो, मौसी को क्यों बता रहे हो, आप बच्चे को इस बात का बुरा लग रहा है, बच्चे को इस बात का क्यों बुरा लग रहा है, ये हमें नहीं मालूम। अभी हम गेस कर रहे हैं। यहाँ आप चाहते हो कि मम्मा आपके बारे में ना बताए, आप ऐसा चाहते हो, पहले क्रॉस चेक कीजिए, क्योंकि बच्चों की कम्युनिकेशन कितनी डेवलप्ड है, वो क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं, क्या वो अलाइन है। अब नानी ने पूछा कि कैसे हो आप, तो मैं उन्हें ना बताऊं, आप ये चाहते हो मैं उनसे कहूं आप ठीक हो, बस थोड़ा सा पैर में चोट लगी, आप ठीक हो, मैं ये ना बताऊं। क्रॉस चेक कीजिए, व्हाट डज ही वांट, फिर ऐसा क्यों चाहते हो, क्या सोचते हो। तो बच्चे के मन में कुंठा कहाँ है, गांठ कहाँ है, व्हाट इज इट दैट स्कैर्स हिम और बॉदर्स हिम, उसका फियर क्या है। जब तक हम ये नहीं जान पाएंगे तब तक हम उसके कष्ट का निवारण कैसे। वो अपनी वीकनेस नहीं दिखाना चाहता, वो एक इमेज है, उस इमेज को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता, व्हाट इज इट, ये जानना बड़ा जरूरी। फिर सब मुझसे पूछेंगे, सब मुझसे पूछते हैं तो मैं इतनी लाइमलाइट हैंडल नहीं कर सकता। बहुत कुछ बच्चे एज एडल्ट्स भी आप देखेंगे वो कॉन्शियस हो जाते हैं, वो पीछे पीछे रहना चाहते हैं। So what is it about this episode that bothers him? जब तक हम ये नहीं जान पाएंगे तो कोशिश कीजिए थोड़ा वार्तालाप और कीजिए उसके साथ। I have a question. I have a question. All right. Excuse me ma'am. कहिए। Hello ma'am, good evening. Yeah. कहिए जी, मैं सुन रही हूँ। Trinap Puri, ask your question. Ma'am, I have a small brother in this section only, and I am his sister. So I'm asking that how to get rid of mobile phone when child is more addicted to phone. Oh my God! And how old are you, darling? I am 13. You are 13 and you're so concerned about your Wow. That's lovely. भगवान ऐसी बहन सबको दे जो अपने भैया की इतनी चिंता करती। अच्छा ये बताओ, तुम कितनी देर फोन के साथ रहती हो, वो एडिक्टेड है और आप? मैम बस 1 घंटा मैम, क्योंकि मैम मेरा वर्क आता है उस पे से। अच्छा, आपका वर्क आता है, 1 घंटे में आप अपना वर्क कॉपी कर लेते हो। यस। तो आपने अपने नन्हे जनाब को भी यही सिखाना है, फोन को उससे जब उसका वर्क आता है उसका वर्क उससे करवाओ या मम्मी करवाए, उसके बाद फोन को छुपा दो। 2 दिन वो रोएगा धोएगा कुछ करेगा, उसका मन बहला लो, उसके साथ कैरम बोर्ड खेलो, उसके साथ लूडो खेलो, उसके वो साइकिलिंग करे, उसको जरा देखो करो, थोड़ा बहुत रोना गाना करेगा, उसको इग्नोर करना। जब ये रोता है रोएगा, अगर फोन नहीं मिलेगा तो डरना नहीं, घबराना नहीं, मम्मी को भी समझा देना। और अगर दादी पास में रहती है और दादी को भी कह देना कि मन को कड़ा कर ले, इसके रोने से कुछ नहीं होगा, लेकिन हमने इसकी आदत छुड़वानी। कर पाओगी?
लेकिन ये बहुत चिड़चिड़ा होता है फोन के लिए, बहुत लड़ता रहेगा, सबसे लड़ता रहता है कि इग्नोर करना है बेटा। जब ये लड़ रहा है ना, बदतमीजी कर रहा है, उस टाइम पे इसको कुछ नहीं समझाना, इग्नोर करना है। इसकी बदतमीजी को उस टाइम पे इग्नोर करना है, क्योंकि उसको जो चाहिए उसको नहीं मिल रहा तो अपना गुस्सा दिखाना है। उस टाइम पे अगर इसको रोकोगे, इसको समझाने की कोशिश करोगे तो ये और ज्यादा बदतमीजी करेगा। तो अगर घर के सब लोग वो 2-3 दिन इग्नोर कर सके, मन को कड़ा करके, ट्रस्ट मी वो इस आदत से बाहर आ जाए और आगे के लिए बहुत आराम हो जाएगा सबके लिए। ओके मैम, मेरे पास एक और क्वेश्चन है। सच्ची पूछो मैम, ये मैम जब ऐसे कोई गेम चलती होती है मैम, या फिर मैं और वो खेलते हैं, तो अगर वो वैसे हार जाता है तो वो बहुत ऐसे चिड़चिड़ा हो जाता है कि सामान उठा के फेंकने लगता है, या फिर उसको कोई चीज चाहिए होती है तो वो बहुत चिड़चिड़ा होता है कि बस मुझे ये चाहिए लेके दो। फिर हमें भी ऐसे इतना चिड़चिड़ा हो गया, लेके देना पड़ता है। तो बस ये आप ही लोगों ने आदत बना दी है ऐसी, क्योंकि आप लोग की चिड़चिड़ाहट मैं तो मना करते, लेकिन सुनता ही नहीं है मेरी कोई। आपकी कोई नहीं सुनता। जो नहीं सुनते उनको ही प्रोग्राम सुनाना पड़ेगा ना बेटा। तो अभी भी आप बताओगे तो अभी भी आप मम्मी भी है, अभी मम्मी भी है साइड में। मम्मी को समझाना है। मम्मी जी सुन रही है हमें, तो मम्मी जी ये समझ ले कि उसकी हर जिद अगर आप पूरी करेंगी तो फिर आपकी शिकायत का आप नहीं रखेंगे। अगर आपकी जेन्युइन ये शिकायत है तो आपको उसकी जिद नहीं पूरी करनी। मैं इसीलिए सभी पेरेंट्स को कहती हूँ, टेक टाइम टू से नो टू योर चिल्ड्रन। बहुत जल्दी से हर बात के लिए ना मत कहिए, लेकिन जब ना कह देते हैं तो उस ना को हाँ में मत बदलिए। बच्चे सिर्फ और सिर्फ आपकी हद देख रहे हैं। किस पॉइंट पे आके आप फिसल जाएंगे, किस पॉइंट पे आप मेल्ट करेंगे, आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। उन्हें पता है कितनी ऊंचा तक रोना है, कितना नाटक करके दिखाना है जिससे कि आप मान जाओगे। और आप कहोगे दम नहीं लेता है, तंग कर दिया है। तंग नहीं कर दिया है, आपने हार मानी, आप थक गए हैं। तो ना थकिए, ना हार मानिए, डटे रहिए। ओके मैम, थैंक यू। ऑलराइट जी। Ma'am, there is a viewer on Facebook, Shilpa Gupta. She is asking a question. Ma'am, how to teach the sportsmanship with a short temper kid who feels inferior with his peer group who are already good in playing, but your kid is just learning. Those kids bully him and he lost all his confidence and become aggressive. Ma'am, this is a question. Okay. Nehal, would you like to say something, bache? For me, I believe that love and unconditional love is something that can get your child out of it. You have to make him believe that bullying हुई है, मानते हैं, लेकिन हम आपके साथ हैं as parents and people who support, because often support and love is something that can help these children get out of it, and also develop and regain the lost confidence. So yes, that kind of support is very essential for this child. जी मैम, आई होप द आंसर सेटिस्फाइज यू। एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि हम बड़े, जैसे मैंने कहा ना, कि बच्चों को रियल जीवन का एक एहसास दीजिए। और रियलिटी, जो जीवन की रियलिटी है, जीवन के कटु सत्य में जीवन मधुर नहीं होता। हमेशा जीवन एक सा नहीं रहता। सुख और दुख का एक अजब सा ताना बाना है। वो कहते हैं ना, कुछ खट्टा है कुछ मीठा है। जीवन में हर तरह के सुर और स्वाद आने वाले हैं। सो चिल्ड्रन हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दीज बिटर मोमेंट्स। अब किसी की शादी का डेस्टिनेशन वेडिंग का प्लान था, किसी का एक यूरोप का टूर था, कोरोना वायरस ऐसे आई कि सब धरे का धरे रह गया। सो हमने सोचा क्या था और क्या हो गया। सो कहीं ना कहीं इस तरह की इवेंचुअलिटीज के लिए प्रिपेयर्ड रहना भी जीवन का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। सो जब आप उनके साथ खेलते हैं, छोटे बच्चों के साथ, तो हमेशा वो बैटिंग करेंगे और आप बॉलिंग करेंगे तो गड़बड़। उनका 6 नहीं आया और आपके 2 6 आ गए, 3 6 आ गए, तो आप अपना 6 भी उनको दे देंगे तो गलत हो। तो वो जो नेटफ्लिक्स पे मूवी स्क्रीन हो रही है ना आजकल, लूडो, जिसमें वो गाना है, अरे बेटा जी ओ भैया जी, कुछ नरम नरम है कुछ गरम गरम, वो गाना बहुत बढ़िया है, उसमें जीवन का पूरा सार है। सो नरम और गरम दोनों तरह का
लास्ट वन, बच्चों को चखना चखलाना एज पेरेंट्स हमारी जिम्मेदारी हो जाती है, बिकॉज वी हैव टू प्रिपेयर देम फॉर लाइफ अहेड. And life is going to show them all the colors, and it's not going to be only black and white, it's going to be huge shades of gray in their lives. अगर जीतने की कामना हर बच्चा करे, जीतने की दुआएं हर माता पिता बच्चे को दे, लेकिन जीत के साथ कभी कभी हार भी मिलेगी. वो उस हार से हार ना जाए, उस हार को एक्सेप्ट कर पाए और अगली जीत की तैयारी कर पाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेसन होगा जो उसको सिखलाने की जिम्मेदारी माता पिता की होगी. हम अपनी जिम्मेदारी से चूक नहीं सकते. We have to teach these lessons of life to them, और यही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट. स्पोर्ट्स सेरेमनी होती है तो उसमें क्या कहा जाता है? मे द बेस्ट टीम विन. हर टीम ये मानने को तैयार रहे कि मुझसे बेहतर कोई खेलता है. तो कहते हैं ना, जुगनू मियां जीना छोटा करो. मैम मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है. जी पूछिए. आप अपनी उम्र बताओगे, एज बताओगे? मैम मैं दृश्य की मम्मी हूँ. अच्छा जी. मैम ये दृश्य है, मेरी बेटी तो ठीक है, बट ये ना दृश्य मेरा बेटा है, वो बहुत ज्यादा जिद करता है. और मैम वो ना बड़ों पे हाथ चलाते हैं, उसे कितना भी समझो प्यार से तो उस वक्त तो मान जाता है, फिर बाद में गुस्सा में वही काम करता है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है. तो फिर आप क्या करती हैं जब वो एग्रेसिव हो जाता है? मैम उसे कितना भी प्यार से मनाओ नहीं मानता, थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा फिर वही काम करेगा. तो जब वो वही काम करता है तब आप क्या करती हैं? मैं आपसे ही जानना चाह रही हूँ. मैम मैं वहाँ से बड़ी वाली बेटी को साइड कर देती हूँ, तुम गुस्सा करते रहो. मैम फिर वो पैर हाथ पटकता है, थोड़ी देर रोता है, फिर खुद शांत हो जाता है. तो बस आपको वही करना. जितना उसको आप इग्नोर करेंगे उतना, देखिए बच्चों का बिहेवियर जो है वो किसी ना किसी नीड पर बेस्ड होता है. वो अटेंशन चाहता है, आपका ध्यान चाहता है, आपका स्नेह चाहता है, अपनी बात मनवाना चाहता है. अगर आप उसकी ये नीड को पूरा नहीं करेंगे, उसकी जरूरत को पूरा नहीं करेंगे, तो इस व्यवहार का माध्यम का इस्तेमाल करना वो बंद कर देंगे. और मैम वो पढ़ना बिल्कुल नहीं चाहते रहते, कितना भी उसे बोलो थोड़ा पढ़ लो, लेकिन नहीं पढ़ेगा वो. भाई वो, मुझे एक बात बताइए, पढ़ना तो 14 साल का बच्चा भी नहीं चाहेगा. बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो अपने आप से पढ़ना शुरू कर देते हैं. तो जो पढ़ने का एक टाइम निश्चित है, उसमें कोई इफ और इफ बट तो है ही नहीं ना. एक खेलने का टाइम है, एक कार्टून देखने का टाइम है, एक पढ़ने का टाइम है. उस पढ़ने के टाइम पर कोई डिस्ट्रैक्शन आसपास होनी ही नहीं चाहिए. मैम एक्चुअली क्या होता है, उसकी बड़ी सिस्टर है, वो पढ़ेगी, साथ में कहेगी बाबू आप भी आके पढ़ लो, बट वो पढ़ेगा नहीं. वो कहेगा कि नहीं मुझे खेलना है, सिर्फ उसे खेलना होता है, किसी भी वक्त पढ़ना नहीं होता. और जिद करके बैठेगा, बस जिद उसका बहुत ज्यादा है. देखिए, पहले तो वो बड़ी बेटी को मम्मी ना बनाइए, उसको बहन रहने दीजिए. वो अपनी पढ़ाई की जिम्मेदारी ले. और इतने छोटे नन्हे मुन्ने को, 4-5 साल के बेबी जो आपका दृश्य है, उसको तो आप लेके बैठेंगी तो वो पढ़ेगा. इसका मतलब ये कि उसके आसपास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए. दृश्य अभी 5 o'clock हुए हैं, 5:30 पे आप और हम पढ़ने बैठेंगे. आपका स्टडी टाइम है, एक फिक्स टाइम सेट कीजिए उसकी पढ़ाई का. उस पर आप उसको लेके बैठती है जहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, बहन उसके आसपास नहीं है. शी इज नॉट गोइंग टू पेरेंट हिम. आपको करना है ये काम उसके साथ, ताकि उसको भी समझ में आए कि ये मेरा एक स्टडी टाइम है. खेलना इसके बाद होगा, कार्टून इसके बाद होगा. जो भी आपका घर का एक रूटीन है जिसमें एक फिक्स टाइम है, जो मैंने आप लोगों से पहले भी कहा, एक स्ट्रक्चर और एक रूटीन का होना बहुत जरूरी है बच्चों की लाइफ. जब मर्जी कभी भी आज 7 बजे, कल 9 बजे, ऐसे नहीं होनी चाहिए रूटीन इन बच्चों की. देखिए स्कूल में भी बच्चों को टाइम टेबल्स की आदत होती है. फिक्स रूटीन स्ट्रक्चर हमें अपने जीवन को जीने में बहुत आसानी देते हैं. तो बच्चों को ये आसानी, ये कॉन्फिडेंस, ये सिक्योरिटी दीजिए, स्टेबिलिटी दीजिए. और आजकल के जो असमंजस के समय है, उसमें ये स्टेबिलिटी तो बहुत ज्यादा जरूरी है उनके जीवन. सोनू जी, आई थिंक हम अब सेशन रैप अप. थैंक यू मैम. Yes, ma'am. Yes, I ma'am. would like to give hearty vote of thanks to our eminent speakers, Dr. Gitanjali Kumar and Bhingra, for gracing today's webinar. Thank you so much, ma'am, for your interesting and thoughtful provoking ideas. I'm sure that all participants have taken note of their suggestions and will initiate at their level. I would like to thank both of you for visiting and enlightening us with your knowledge. Today's webinar was full of knowledge and interesting things. It gave deep insight into the topic
and also reveal some interesting facts. I'm pretty sure the precious knowledge that Dr. Gitanjali Kumar and Ms. Nehal gave us will definitely help us in our future once again. I would like to thank both of them for taking out time from their busy schedules and enlightening us with so much useful knowledge. Thank you so much, ma'am. Thanks to my parents also for participating in this event and making it useful. I think it's clear to everyone. Our parents are even happy to attend your webinars, ma'am. Thanks a lot to both of you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. All right. Thank you so much, Nehal, for joining. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you, Gitanjali ma'am. It was lovely sharing. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Sonu Thank you, ma'am. ma'am. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you, my dear parents. I hope this is the wonderful